एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बातचीत जो है वो अधर में लटक गई है। बातचीत अब नामुमकिन सी दिखाई दे रही है, रद्द हो सकती है और एक ही सूरत में बातचीत हो सकती है, या तो भारत यू टर्न ले ले या पाकिस्तान। और भारत की यू टर्न लेने की कोई गुंजाइश नहीं लगती और उसका साफ सी वजह है क्योंकि पिछली बार विदेश सचिव स्तरीय बातचीत इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश सचिव ने मुलाकात की थी पृथकतावादी नेताओं से, कश्मीरी पृथकतावादी नेताओं से, और अब इसकी गुंजाइश कम लगती है क्योंकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने भी अपने तल्ख तेवर कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने ऐलान नहीं किया कि बातचीत रद्द हो गई है, मगर उनके हाव भाव तेवर से स्पष्ट है कि यह महज औपचारिकता मात्र है। The statement by the government of Pakistan today on the NSA level talks with India does not come as a surprise. There has been a pattern to Pakistan's actions after the UFA summit, and today's position is a culmination of that approach. At UFA, the two prime ministers agreed on a meeting of the NSAs to discuss all issues connected to terrorism, as well as ensure peace and tranquility on the border. Instead, we saw a sharp increase in the unprovoked firings from the Pakistani side and some serious cross-border terrorist incidents. The last one, at Udhampur, resulted in the capture alive of a Pakistani national, a matter that would have naturally come up in the NSA-level talks on terrorism to Pakistan's discomfort. Insofar as those talks are concerned, Pakistan took 22 days to respond to the Indian proposal to meet in New Delhi. It then proposed an agenda that was at variance completely with what the two prime ministers had agreed upon in UFA. Together, these two actions indicated its reluctance to go forward with sincerity on the agreed process. Even more significantly, without confirming either the program or the agenda, the Pakistani High Commissioner invited Hurriyat representatives to consult with the visiting NSA. This provocative action was completely in consonance with Pakistan's desire to evade its commitment at UFA to engage in a substantive discussion on terrorism. The UFA understanding on the talks, read out jointly by the two foreign secretaries, was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? India remains committed to discussing issues with Pakistan peacefully and bilaterally. In fact, we took the initiative to engage at UFA. But unilateral imposition of new conditions and distortion of the agreed agenda cannot be the basis for going forward. तो मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा पाकिस्तान का। इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे साथ तारिक पीरजादा साहब। तारिक पीरजादा साहब, ऊफा का स्टेटमेंट जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, वो साफ तौर पर कहता है कि बोथ लीडर्स कंडेम्ड टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड अग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू एलिमिनेट दिस मेनेस फ्रॉम साउथ एशिया। और इसका जो सब टेक्स्ट है पीरजादा साहब, वो ये कहता है, अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली बिटवीन द टू एनएसएस टू डिस्कस ऑल इश्यूज कनेक्टेड टू टेररिज्म। बड़ा प्रश्न यहां पर ये पीरजादा साहब कि पहला ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं था सेपरेटिस्ट से बात करने को लेकर, टेररिज्म मुख्य मुद्दा था, तो ऐसे में पाकिस्तान इस बातचीत को क्यों सैबोटेज कर रहा है? देखिए, जब भारत बातचीत से भाग जाता है, जैसे कि पिछले साल 26 अगस्त को भागा था, और इस बार भी जैसे कि फॉरेन ऑफिस भारत का और मोदी साहब की हुकूमत बातचीत से भाग रही है। अब मसला, जैसे कि आपके तजियाकार ने एक सेकंड पहले कहा, यह है कि भारत पहले इनकार करे सरकारी तौर पर और दुनिया से बुरा अपने आप को कहलवाए, या पाकिस्तान ये हरकत करे। याद रखें एक बात, पिछली बार आपने ये कहा था, चूंकि पाकिस्तान ने हुर्रियत के लीडरों से मुलाकात की है, इसलिए हम ये मुज़ाकरात मुअत्तल करते हैं।
इस बार पाकिस्तान ने अभी तक बातचीत नहीं की थी। अभी तो सरताज अजीज दिल्ली में पहुंचा ही नहीं है। आपने मुज़ाकरात मुलतवी किए हैं, मुअत्तल किए हैं, इनको खत्म किया है या करने वाले हैं, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, प्री कंडीशन पाकिस्तान की तरफ से आ गई है। पीरजादा साहब, प्री कंडीशन पाकिस्तान से आ गई है और आप मेरे सवाल से भागिए मत पीरजादा साहब। मैंने बहुत ही पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा था, ऊफा की स्पिरिट में बहुत स्पष्ट था। पीरजादा साहब सुन तो लीजिए, हजरत सुन लीजिए, सुन लीजिए। ऊफा की स्पिरिट में साफ था टेररिज्म तो आप भली भांति समझते हैं ना। टेररिज्म से तो आपका चोली दामन का साथ है, टेररिज्म से तो पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। तो आपको समझना चाहिए टेररिज्म क्या होता है। पीरजादा साहब का मैं जवाब दे रहा हूं, बड़ा सवाल है कि आपकी बात का जवाब दे रहा हूं एक लाइन में, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं एक लाइन में। आज तक आप लोगों ने कश्मीर को जो लीडर हैं उनको टेररिस्ट नहीं कहा, आपने उनको अलगादी और सेपरेटिस्ट कहा है। वो तो दहशतगर्द है ही नहीं, तो दहशतगर्दी की बुनियाद पर बनाकर आपने मुज़ाकरात जो है उनको इस सूरत में मुअत्तल करना चाहा है या करने वाले हैं, जबकि हमारी तो अभी उनसे मुलाकात हुई ही नहीं है। पीरजादा साहब आप देखिए, पीरजादा साहब आप मुद्दे से फिर बच रहे हैं। पीरजादा साहब आने तो दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। कंचन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। पीरजादा सुन लीजिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। पीरजादा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पत्रकार कंचन गुप्ता। कंचन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक मिनट पीरजादा, मैंने आपको ऐसी दलील दी है आपके फॉरेन ऑफिस ने आज एक स्टेटमेंट इशू किया है, उसमें आपके फॉरेन ऑफिस ने साफ कहा है कि अगर हुर्रियत से बात नहीं करने दी जाती ये हमें मंजूर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई नहीं है, तो फिर क्या है कि ये भाई आप कम से कम अपने मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं, अपने सरकार कैसे कर रहे हैं तारिक पीरजादा? आपके फॉरेन ऑफिस ने एक प्री कंडीशन लगा दिया है कि नो सेपरेटिस्ट, नो हुर्रियत, नो टॉक्स। आपने डी फैक्टो ये स्टेटमेंट दे दिया है। बात कर ली है, अब मेरी बात करने, अब बात सुनिए। इस वक्त 1 मिनट में बात करता हूं, बाकी सारा वक्त आपका है। देखिए, हेलो, ये बोलिए बोलिए, आवाज बंद हो गई। हेलो जी, देखिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी सरताज अजीज का जहाज दिल्ली में नहीं उतरा है और ना ही कश्मीर के लीडरों जिन्हें आप अलगाबादी कहते हैं उनसे कोई मुलाकात हुई है। आप सरताज अजीज को आने दें और फिर उससे बात करें। अगर उसके बाद आप मुतमईन नहीं होते तो आप कहिए कि मुज़ाकरात ब्लैक एंड व्हाइट का हिस्सा हो चुका है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री चाहते। पीरजादा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट तो पढ़ लीजिए, रीड योर ओन पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आपको मैं पढ़ के सुनाऊं? रीड जो नहीं, आप अपने फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट पढ़िए। चलिए पीरजादा साहब, मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन गैदर करके आए। आप मेरे से गुजारिश है आपसे मेरी आगे से। पिछले साल भी भागा था, मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं। की सुर्खियां अखबार की ये है कि भारत दूसरी बार मुज़ाकरात से भाग गया है। नहीं, चलिए मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु, बड़ा सवाल ये कि बातचीत चलिए रद्द हो रही है, हो जाएगी, अधर में लटकी, इसमें दो राय नहीं है, मगर बड़ा प्रश्न ये, अब ये सवाल उठने लगा है सुधांशु त्रिवेदी कि आप बातचीत क्या करोगे? यहां जब डेमोक्रेटिक लीडरशिप से आप बात करते हो, ऊफा के स्टेटमेंट में कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं, मगर जब वापस जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तानी नवाज शरीफ जब वापस जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी सेना की आलोचना सहनी पड़ती है, उनकी घोर आलोचना सहती है। और यही वजह है कि आप कश्मीर को लेकर ऐसा हॉकिश रवैया अपना रहे हैं। तो आप बातचीत किससे करेंगे? सेना से तो सेना कंट्रोल कर रही है, आईएसआई कंट्रोल कर रही है, तो आप बातचीत किससे करेंगे सुधांशु? आप सरताज अजीज जब दिल्ली में आएगा तो उस वक्त आईएसआई नहीं होगी। बातचीत के बारे में हमारा नजरिया। तारिक जी एक मिनट, पीरजादा साहब एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज पीरजादा साहब एक मिनट। सुधांशु जी बोलिए। मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। जी देखिए, हमारा नजरिया एकदम साफ था। ऊफा में जो बात हुई थी और जिस लेवल पर जिस सब्जेक्ट के बात होने की बात हुई थी उसी के अकॉर्डेंस में हम चल रहे थे। जैसे मैं तारिक साहब से कहना चाहूंगा, एनएसए क्यों, ऊफा में तो यह भी बात हुई थी कि डीजीएमओ लेवल पे भी बात होगी,
और बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर की भी बात होगी, पर जब डीजीएमओ पे बात होगी तो सिर्फ बॉर्डर पे फायरिंग के इश्यू पे होगी, ब्रॉडर नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं। उसी ढंग से जब एनएसए लेवल टॉक होगी, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की टॉक होगी, तो सिर्फ सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ऊपर होगी। कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, जब कश्मीर पे बात होगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो किस लेवल पे हो सकती है, फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हो सकती है। तो जिस लेवल की टॉक, जिन शर्तों के अनुसार टॉक थी, हम उसके लिए तैयार थे। जवाब दूंगा, एक सेकंड दीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली, पॉलिटिकल आपकी बात सुन ली, नॉट एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। आपने बहुत अच्छी बात कर ली, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, मुझे उस बात से कोई इख्तलाफ नहीं जो आप कह रहे हैं कि उफा में क्या हुआ था। मैं ये कह रहा हूं कि जब एनएसए की मीटिंग होगी या होनी चाहिए तो उसमें दोनों जो साइड्स हैं वो अपने अपने मसले उठाएं। बात तो वो तो मीटिंग एक अलहदा चीज है, ये जो हुर्रियत के लीडरों से मुलाकात है इससे भारत का क्या ताल्लुक है। आप अगर उनको रोक दें, जबरदस्ती रोक दें, तो हम उनको उनके गले से पकड़कर एम्बेसी में लाकर बात नहीं करेंगे। आपने बात रोकने के लिए, मुज़ाकरात खत्म करने के लिए दूसरी बार उसको बहाना बनाया, बल्कि इस बार तो हमने अभी उनसे मुलाकात ही नहीं की है। ठीक है, आपने पिछली बार मुलाकात के बाद बहाना बनाया था, इस बार तो मुलाकात ही नहीं हुई है। साहब, जरा आप अपने देश के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, आप बिना पढ़े बात भाई 10 दफा देख चुका हूं। आप जो उससे मतलब निकाल रहे हैं कुछ वो मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के आपने- लोगों को समझ आपने है, नहीं पढ़े पढ़ा है, लिखे या लोग तो हैं, फिर- वो ये नहीं कहेंगे जो आप कह रहे हैं। हमारे मैं पढ़ के मिनिस्ट्री ये सुनाऊं कह रही है आपको? चलिए, कि हम- तारिक पीरजादा, जी, हाथ सुनाइए, कंगन को आरसी क्या, सुनाइए, सुनाइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, कंचन हाथ गुप्ता अगर आप कंगन पढ़ को के आरसी सुना दें। क्या, सुनाइए ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। सुनाइए, सुनाइए। ये एनएसए की मीटिंग हो रही है टेररिज्म पर, हाँ, और वहां पर आपका स्टेटमेंट आता है, रेस्पॉन्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कहते हैं द फॉरेन सेक्रेटरी कन्वेड टू द इंडियन हाई कमिश्नर दैट इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू एक्सेप्ट दिस एडवाइस। एडवाइस क्या था कि आप आ रहे हैं, हमारे आपके एनएसए आ रहे हैं, हमारे एनएसए से टेररिज्म पर बात करने के लिए आप हुर्रियत वालों से ना मिले, और आप कह रहे हो कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस। और फिर आप और यहां पर बैठे आप स्टूडियो में कह रहे हैं कि वो तो मिले ही नहीं जी। अब आप मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं, नहीं, सुनिए, सुनिए। मेरा मैं नहीं, नहीं, आपका तारिक मैं पीरजादा आपका साहब, बहुत शुक्रगुजार तारिक हूं पीरजादा कि साहब, आपने ये बयान तारिक पढ़ा। पीरजादा आप साहब, देखिए, कंचन आप एक साहब, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आपके और तजिया प्रधानमंत्री, जरा बात तो आपके प्रधान, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। तारिक पीरजादा साहब, मैं एक छोटी सी चीज आपसे यहां पे पूछना चाहता हूं। मुझे जवाब तो देने पिछली दी ना। बार मैं आऊंगा, मैं जरा जवाब देना। देखिए, ऊफा के तुरंत बाद जब जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था, तो क्या यह सच नहीं है कि वहां पाकिस्तानी आर्मी में जबरदस्त नाराजगी थी नवाज शरीफ को लेके, और ये जो पूरी जिस तरह की पोस्टरिंग हो रही है उसी का नतीजा है। मैं यहां दो एक्सपर्ट्स को कोट करना चाहता हूं। जाहिद हुसैन कहते हैं, द जॉइंट स्टेटमेंट हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद मिलिट्री बॉसेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट रिलेशंस बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप हैव इंप्रूव्ड। मारियाना बब्बर कहती हैं, Sharif government is feeling heat from the army for succumbing to Modi's style of limited engagement. The absence of Kashmir is rankling in the army. खुद आपके एक्सपर्ट मैं आपको उसका जवाब दूं, कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दूं और आपको। पाकिस्तानी मैं आर्मी उसका और जवाब ISI दूं। ने सही मामले में सैबोटाज किया है। तारिक पीरजादा, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। पाकिस्तानी आर्मी के पास अपनी पाकिस्तान के अंदर रॉ की जो दहशतगर्दी की फैलाई हुई दहशतगर्दी की जंग है, ट्राइबल एरियाज में और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान उधर मसरूफ है। पाकिस्तानी फौज के पास इस कारोबार का, इस मसले का अभी उनके पास वक्त ही नहीं है। मैं आपको जवाब देता हूं, ये मारियाना बाबर और इस कुमाश के जो दूसरे लोग हैं जो पैसे लेकर स्टोरियां लिखते हैं, ये रिपोर्टर हैं, ये एनालिस्ट ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं। दूसरी बात, मैं भी पाकिस्तान में ही हूं, आपको बताता हूं इंडिया के पाकिस्तानी चैनल आर्मी पर की क्या हकीकत है। मुझसे पीरजादा साहब, ज्यादा, सुनिए, मुझसे सुनिए। ज्यादा कोई मेरे भी चैनल champion नहीं पे, होता। मेरे आप चैनल मेरी पे बात आप सुने। दूसरे मेरी एक्सपर्ट्स बात की को क्रेडिबिलिटी नहीं, सवाल ना उठाएं। आप देनदारी मैं आपको नहीं कर बताता रहे हूं हैं। पाकिस्तानी आप आर्मी की बात क्या करने दें। हकीकत है। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता आपका हूं मसला पाकिस्तानी ये आर्मी की है क्या हकीकत कि है। हमने आपसे मुज़ाकरात करने की हामी भरी, अफगानिस्तान के और आप प्रेसिडेंट, सुनिए, मुज़ाकरात से सुनिए, भाग रहे हैं, सुनिए, और उसके लिए सुनिए आप एक मिनट, इधर-उधर के तारिक बहाने पीरजादा, तलाश रहे हैं।
तारिक पीरजादा नहीं सुनिए। नहीं, पहले मुझे बात करने दें। नहीं, आप देखिए, बोल चुके हैं, आप बहुत बोल रहे हैं काफी टाइम से। आपने नहीं, मेरी बात आपने अपनी सुनिए। बात कर ली है। मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मैंने अपनी बात चलिए, नहीं की। बोल लीजिए, चलिए, देखिए, बोलिए। आपको जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी जबरदस्त पोजीशन में है कश्मीर का मसला उठाने की और भारत के साथ मामलात को मजमूई तौर पर तय करने की। इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है और उसका सबूत मैं देता हूं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स ने कल जो बयान दिया पीटर लेवॉय ने, उसने कहा कि कश्मीर का मसला एनएसए मीटिंग में उठाना जाना चाहिए। वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपको एडवाइस दे रहा है। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है पाकिस्तान की। कर लूं। पाकिस्तान की हकीकत यह है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी साफ कहते हैं स्पेशल सर्कल्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री आर बिहाइंड मिलिटेंट अटैक्स इन अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आपको एक्सपोज कर रहे हैं जिन्होंने आप पर विश्वास किया था। चलिए संजय झा मेरे साथ हैं, संजय झा मेरे साथ है कांग्रेस से। नहीं चाहते, ठीक है, मैं आऊंगा आपसे सर, मैं आऊंगा आपके पास। आप लोग पीस नहीं चाहते हैं, संजय झा, ऐसे ही होगा। संजय झा, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब ये डायकोटमी, ये दोहराव दिखाई दे रहा है, जहां पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई इस तरह का प्रेशर डाल रही है, तो बातचीत का फायदा ही क्या है? बातचीत का फायदा ही क्या है संजय झा? ये आप लोग हमेशा पाकिस्तानी फौज का नाम लेकर आपको मौका जिसे गाली देना आपके यहाँ मैं सबसे ज्यादा आप ही को मौका दे रहा है, सियासी सकाफत बन गई है। मौका दे रहा हूं तारिक पीरजादा साहब, थोड़ा खामोश हो जाइए एक मिनट। संजय झा बताइए जी। अभी सर, हाँ अभी सर देखिए, हकीकत यही है कि अभी पाकिस्तान में जो अहम भूमिका जो निभाया जा रहा है वो जनरल रहील शरीफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ का अब उनका वहां पर योगदान बहुत कम हो गया है। बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। एक साल पहले जब बातचीत जब हमने रोका था तो उस समय नवाज शरीफ, ये बात आपने उस समय उनके पास शायद आजादी थी। सर मैं आपको जरा मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं बैठे हुए। नहीं, हाँ हो गई है थोड़ी सी बोलने का काम तो आप हमारे दादाजी, जरा मुझे बोलने दीजिए, जरा 15 सेकंड बोलने दीजिए। सरताज अजीज का जहाज देखिए उफा के बाद आई विल शट आउट योर ऑडियो। सरताज अजीज का जहाज अभी भी चकलाला एयरपोर्ट पर खड़ा है। यार प्लीज कट ऑफ, एक मिनट ऑडियो कम कीजिए अभी इनका। बोलिए संजय झा। हाँ जी, तो अभी सर यदि आप देखिएगा तो उफा में जो मुलाकात हुआ उसके बाद आप देखिए कि आप हमारे विरुद्ध गुरदासपुर में या उधमपुर की आतंकवाद के हमला उसको अलग कीजिए, और उसके बाद ये भी देखिए कि वहां के उनके रक्षा मंत्री ने भारत पे एक न्यूक्लियर अटैक का धमकी दिया था। परवेज मुशर्रफ ने भी बहुत गलत शलत बयान किए थे। तो मैं समझता हूं कि हालात जिस तरीके का भी है, इसमें बातचीत करने से भारत को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि इस बातचीत से वो कश्मीर को फिर सेंटर स्टेज ले आए। और यदि आप देखेंगे कि उनके जो यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने तो खुलेआम बोला है कि कश्मीर में अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए। तब जब आप पर आतंकवाद के हमले हो रहे हैं गुरदासपुर, उधमपुर और जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों की जान जारी है, तो मोदी सरकार का इस वक्त क्या उद्देश्य लक्ष्य था कि ये बातचीत हो, मुझे समझ में नहीं आया। और इससे मैं समझता हूं कि हमारा एग्रीमेंट पढ़िए, क्योंकि यदि उसका हम छठा पैराग्राफ पढ़िए फॉरेन पॉलिसी में, तो बाहर के लोग का फाइनल सेटलमेंट होना है। सुधांशु त्रिवेदी में ऐसे में क्या पाकिस्तान कश्मीर को सो कॉल्ड इंटरनेशनलाइज करने में कामयाब हो पा रहा है? सुधांशु, देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में ये बात कहना चाहूंगा। तारिक पीरजादा साहब अभी जो बोल रहे थे, मैं उनके इंटरनल और इंटरनेशनल पर सिर्फ 2 पॉइंट कहूंगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का कोई रोल नहीं है, तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि ओसामा बिन लादेन अगर उनके आर्मी के कैंटोनमेंट के बगल में महफूज रहता है बरस दर बरस, तो 2 में से एक बात तो माननी पड़ेगी। या तो ये मान लीजिए कि आपके इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत के साथ रह रहा था, या फिर ये मानिए कि आपका इस्टेब्लिशमेंट फेल हो चुका है, उसे पता ही नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वहां पे बैठा है। दूसरी बात, इन्होंने कई इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा पाकिस्तान के हालात इस बात का जवाब दूं, एक बात याद दिलाना चाहता हूं इस बात का। तालिबान की एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। तालिबान की गवर्नमेंट को तीन ही देशों ने मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात।
यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम ऐलानिया तरीके में बोला कि किसी भी तरीके की दो टूक शब्दों में आतंकवाद पे बात होगी, देयर कैन नॉट बी ए गुड तालिबान और बैड तालिबान। ठीक है, यूएई में जाके बोला है और पूरा एहतराम किया है वहां की हुकूमत ने। नरेंद्र मोदी जी का आपके सामने हालात खुद साफ है कि आप बैनुल-अक़वामी मामलात में किधर खड़े हुए हैं। ठीक है, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे पीरजादा साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप कहां बैनुल-अक़वामी मामलात में खड़े हैं? ठीक है पीरजादा साहब, एक सवाल मेरा आखिरी सवाल आपसे। जी प्रेसिडेंट अशरफ भी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बददियांती है कि आप बात करने नहीं देते। ठीक है, नहीं आप ही को मौका दे रहा हूं मैं। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट साहब की जो पहली विजिट थी पाकिस्तान को, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त उन्होंने सबसे पहले मुलाकात डेमोक्रेटिक यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से नहीं की थी, उन्होंने मुलाकात की थी आर्मी और एसआई से। सुनिए उसका जवाब और उसके बाद जब 7 अगस्त को काबुल में 65 लोगों को मार डाल दिया गया था, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर सलाउद्दीन रब्बानी ने साफ कहा था, स्पेशल सर्कल्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री आर बिहाइंड मिलिटेंट अटैक्स। अशरफ साहब कहते हैं, वी होप फॉर पीस बट वॉर इज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट अस फ्रॉम पाकिस्तानी टेरिटरी। ये हालत है आपकी पाकिस्तानी आर्मी की। अफगानिस्तान कह रहा है, मैं बता देता हूं, अफगानिस्तान कह रहा है, मैं आपको आप कह रहे हैं जिनमें आप पे विश्वास जताया था। आप लोग अब आप तकरीर कम कीजिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को खौफ ये तारी हो चुका है कि अगर सरताज अजीज एनएसए की मीटिंग में जाता तो वो ट्राइबल एरियाज में, कबायली इलाकों में और बलूचिस्तान में रॉ की बराह रास्त दहशतगर्दी और जो अभी हमारा पाकिस्तानी पकड़ा गया है, उसकी दस्तावेज़ इंडियन बता दीजिए, आप डर गए हैं, एक सबूत बता दीजिए, सामने आनी थी। आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए नेशनल टेलीविजन पे। मोहम्मद नावीद आतंकवादी पकड़ा गया, क्या बात कर रहे हैं कोई हया आप? क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर तो सबूत नहीं है आपके पास। अब कश्मीर आपके पास सबूत नहीं है। तारिक पीरजादा आपके बच्चों को मारा गया है पाकिस्तान को। मर्जी कहते रहिए, कम से कम अपने बच्चों की तो सोचिए कि कश्मीर ऊपर आ चुका है। टेररिस्ट ने आपके बच्चों को मारा है आर्मी पब्लिक स्कूल में। आपके बच्चों की जिन लोगों ने मारा है वो आपके पैसों से और आपकी रॉ की फंडिंग और प्लानिंग से आप डर गए थे। सरताज अजीज अपनी गर्दन दस्तावेज लेकर आ रहा था। इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा, सुधांशु त्रिवेदी, संजय झा, आप सबका। सच तो यह है कि तारिक पीरजादा साहब की बात से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फितरत है ना, वो उस शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने रेत में अपनी गर्दन दफन कर दी है। वो हकीकत नहीं देख रहा है, खतरे को नहीं देख रहा है और बार बार पेशावर जैसे वाकयात सामने उभर कर आते हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बातचीत रद्द हो सकती है। औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, मगर दोनों तरफ से जो कड़े तेवर हैं उसके बाद इसके आगे बढ़ने के कोई इम्कान नहीं दिखाई दे रहे हैं।